Good morning, 11th standard. Today we start with another one topic of equilibrium chapter, and that is ionic equilibrium. First one in this topic in ionic equilibrium, we will study about the electrolytes. But simply if we are going to say that the substances which like acids, bases and salts which can conduct electricity, okay, which can conduct electricity in their aqueous solution, अगर उनको water में dissolve कर दिया जाता है, and because of their ionization means they break up itself into ions, then these substances are known as electrolytes. इन्हें हम क्या कहते हैं? Electrolytes कहते हैं. And basically because of the presence of these ions in solution is responsible for the conduction. ठीक है? When current passes through the wires, as you can see the setup here also, तो जब इसमें से करंट पास ऑन होता है तो ये क्या करता है कि it shows movement of free electrons through wire, and that process of dissociation and flow of ions in aqueous solution is known as electrolysis. तो इन ऐसे सारे substances जो इस process को show करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? Electrolytes कहते हैं. Like for example, the electrolysis of sodium chloride in aqueous solution gives sodium and chloride ions in solution. Now, if we are talking about how many, there are many types of electrolytes present in our human body also, like sodium, magnesium, calcium, potassium, and chloride ion, even it is present in our body, and all of these having different special functions for our cells and our organs. ठीक है? तो इन सब के अपने अपने एज यू कैन सी कि हमारे बॉडी फ्लूइड के अंदर ये सारे आयंस प्रेजेंट हैं और इन सब के अपने अपने इम्पोर्टेंट रोल होते हैं इनके. ठीक है? अगर किसी भी एक आयन की हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी होती है देन इट स्टार्ट्स क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम. ओके. So there are the many types of examples of electrolytes. It is not necessary कि electrolyte should be only acids, as I have told you that it can be bases as well as it can be the salt, but when dissolved in the water it should dissociate into ions like HCl, HNO3, H2SO4. These are the strong acids, and whereas lithium hydroxide, sodium hydroxide, potassium hydroxide, all these are the examples of bases also, which are the which also act as a electrolyte. So simply we can divide the electrolytes into two categories. One are the strong electrolytes. So strong electrolytes कौन से होंगे? Which is made up of oppositely charged ion. As you can see, nitric acid है, it is a strong electrolyte because it is made up of H positive and nitrate ion. Sodium hydroxide, it is made up of Na positive and OH negative ion. So which are in their solid state, which are held by very very strong coulombic force of attraction, or we can say electrostatic force of attraction. ठीक है? और जब इन इलेक्ट्रोलाइट्स को या इन सब एसिड्स और बेसिस को वाटर में डिसॉल्व किया जाए तो ये इमीडिएटली क्या हो जाए? हाईली वीकेंड हो जाते हैं because of high dielectric constant of water. If we are talking about the weak electrolytes, so the weak electrolytes which weakly ionize means which do not completely dissociate itself into ions in aqueous solution, जो completely नहीं हुए. जैसे अगर हमने बात करी थी KCl, तो K positive plus Cl negative वाटर के अंदर डिसॉल्व होकर के डिसोशिएट होता है. लेकिन अगर मैं बात करती हूँ एसिटिक एसिड की, सो एज यू कैन सी इट इज अ इरिवर्सिबल रिएक्शन. ये तो हमने अब केमिकल इक्विलिब्रियम में सीख लिया है. सो देखिए ये पूरा पूरा डिसोशिएट नहीं हुआ, इट डिसोशिएट
it ionize into a weak ions, that is of hydronium ion and acetate ion. So such electrolytes are known as a weak electrolytes, in which means the constituent ions that are in equilibrium with undissociated molecules of electrolytes. So इसमें क्या होगा बच्चे, याद रखना, due to partial dissociation of electrolytes, it will take place. Next, in this one, the equilibrium is also exist in between the ions and unionized molecule, and that is known as a ionic equilibrium. Okay, so weak acids and bases are also good examples of weak electrolytes like hydrocyanic acid, ammonium hydroxide, mercury chloride. These are the examples. If we are talking about the non-electrolyte, फिर आपका क्वेश्चन आएगा कि भाई नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं मैम? तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स आर those substances which cannot conduct electricity in their aqueous solution due to absence of ions. ठीक है बच्चा, जो अपनी आयंस की एब्सेंस की वजह से जो आपका क्या नहीं कर पाते, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते, एंड दीज आर जनरली पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स which can dissolve in water as molecules instead of ions, जो कि वो नहीं बनाते, आपका क्या कहते हैं, आयंस नहीं बनाते, जबकि आयंस की जगह किस में डिसोशिएट हो जाते हैं, मॉलिक्यूल्स में. जैसे कि अगर मैं ग्लूकोज की बात करती हूँ या शुगर की बात करती हूँ या अल्कोहल्स की बात करती हूँ, तो दे डिसॉल्व्ड इन वाटर, ये डिसोशिएट नहीं होगा. इफ देयर इज अ like sugar C12H22O11, then it will become aqueous solution of sugar. या अल्कोहल की बात करते हैं तो वो भी अल्कोहल सोल्यूशन सॉल्युबल फॉर्म में आ जाएगा. ठीक है, इथानॉल जो होगा या मिथानॉल होगा, सो दैट डिसॉल्व्ड इन वाटर. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द आर्नियस कॉन्सेप्ट, अब आ जाते हैं कि बेसिकली एसिड बेसिस होते क्या हैं, तो हम उन्हें डिफाइन करेंगे. एंड डिफरेंट साइंटिस्ट हैव डन द डिफरेंट वर्क ऑन इट, और उन्होंने अलग अलग डेफिनेशंस दी. तो सबसे पहले बेटा एसिड्स के लिए आर्नियस थ्योरी आती है, और आर्नियस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड वो सब्सटेंस है जिसके पास हाइड्रोजन एटम होते हैं एंड विच कैन donate its hydrogen ion in aqueous solution. ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, आर्नियस एसिड. फॉर एग्जाम्पल, एज यू कैन सी, CH3COOH acetic acid, which you call, when dissolved in water, it form acetate ion, as you can see here also. ये हो गया, तो इसने क्या बनाया, आपका हाइड्रोनियम आयन बनाया और साथ में एसीटेट आयन बनाया. ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सो इट इज आल्सो नोन एज अ एसिड. व्हाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज नोन एज अ हाइड्रोक्लोरिक एसिड? बिकॉज इट आल्सो गिव्स हाइड्रोनियम आयन एंड क्लोराइड आयन. सो हम ये कह रहे हैं कि अगर आर्नियस एसिड्स अपनी प्योर स्टेट में है, मींस सॉल्यूशन फॉर्म में नहीं है, तो वो कैसे होंगे, वो कोवलेंट कंपाउंड्स होंगे. प्लीज इस पॉइंट को नोट कीजिएगा, दैट दे डू नॉट कंटेन H positive ion at that time. The ions are formed by the interaction of water and acid, and when they are mixed, तो तभी H positive ion present होगा जब acid और water क्या होगा, mixed होगा. ठीक है, so arnious acid, as you can see, dissociate into H positive and A negative. ओके, अगला आ जाता है स्ट्रेंथ ऑफ
आर्नियस एसिड. सो ऑब्वियसली स्ट्रेंथ की बात करें तो इनको दो टाइप में हम कैटेगराइज करते हैं. ऐसा एसिड जो कि कंप्लीटली अपने को आयोनाइज कर लेता है और मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोटॉन या H पॉजिटिव सोल्यूशन देता है, उसे हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड. और इसके अंदर बेटा वैल्यू ऑफ एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट या Ka जो होगी वो बहुत ज्यादा हाई होती है. These are the examples of strong acid. जबकि जो partially ionized होगा वो क्या होगा, वो weak acids होगा. and उसमें obviously Ka की value जो होगी वो बहुत कम होगी. and these are the examples of weak acids. अगला आ जाता है Arrhenius base. So these are the hydroxide obviously which produce hydroxide ions in वाटर. जो कि क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करते हैं वाटर के अंदर. और इसीलिए आर्नियस बेसिस को हाइड्रोक्साइड बेसिस भी कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल NaOH when dissolved in water dissociate itself या ionize itself into Na plus OH negative. So these are the other examples, KOH, COH whole twice, ammonium hydroxide. ठीक है. अगर strength Arrhenius basis, so it is also categorized or classified into two types. One is the strong base, another one is the weak base. First one, the base when dissolved in water dissociate completely. So to give hydroxyl ion, these are known as the strong bases. और इसके अंदर जो Kb की वैल्यू होगी, माने कि base dissociation constant की, that should be very very high. For example, in case of NaOH और KOH. जबकि अगर हम weak bases की बात करते हैं तो वो bases जो कि partially ionized होते हैं उन्हें हम बोलते हैं weak bases. जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एटसेट्रा. ओके बेटा. So in overall, अगर हम Arrhenius theory की बात करें, so these are it is a summary of Arrhenius theory that the acid which dissociate in water to produce hydrogen ions, which dissociate, the bases are those substances which dissociate in water to produce hydroxide ions. These are the examples. And if we are talking about the limitations of it, so please beta just note down it. प्रॉब्लम ये आई थी कि Arrhenius कॉन्सेप्ट एसिड्स और बेसिस का that could not explain acidic and basic character which do not contain H positive और OH negative ion. जबकि अमोनिया, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये भी एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर दिखाते हैं, बट इसमें H पॉजिटिव या OH नेगेटिव नहीं था, जिसकी वजह से ये इस करेक्टर को शो नहीं कर पाते. एंड सेकेंड वन, इट ऑल्सो कुड नॉट एक्सप्लेन द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड और बेस in absence of water. These are the limitations, and due to which another scientist come up, and that was a Bronsted-Lowry. ठीक है. तो Bronsted-Lowry ने अलग तरीके से इसको डिफाइन किया एसिड बेस को, और उन्होंने कहा acid is a proton donor which can transfer H positive ion, whereas base is a proton acceptor. So acid base reaction is basically a proton transfer reaction. और ये थ्योरी जो थी वो क्या बता रही थी, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी जो होती थी वो एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ वीक एसिड और वीक बेस को एक्सप्लेन करती थी. ठीक है. इसमें भी वाटर का रोल आया है, और उन्होंने भी ये कहा कि दिस कंपाउंड पार्शियली डिसोशिएट्स इन वाटर. ठीक है. तो इसके लिए उन्होंने जो एरो यूज की वो ये वाली थी बेटा, डबल साइडेड एरो. ऑलराइट. एंड उन्होंने कहा कि वाटर इज एक्ट एज इन दिस वन अ Bronsted-Lowry base. ठीक. We will explain it in detail. उन्होंने ये कहा बेसिकली कि एसिड वो सब्सटेंस है जिसके पास टेंडेंसी है
to give a proton, माने कि acid is a proton donor और base वो substance है जिसके पास tendency है to accept a proton, means a base is a proton acceptor. These are the examples. So ये देखो यहाँ पे आपका just 1 minute. हाँ, ये देखिए HCl is your HCl plus water, hydronium plus chloride. So HCl is a HCl is a क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर एसिड. क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है, एक प्रोटॉन किसको दे रहा है, वाटर को दे रहा है, जबकि अमोनिया इस केस के अंदर बेस कंसीडर हो रहा है क्योंकि ये एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है और अपने को बन रहा है अमोनियम आयन. और वाटर जो है यहाँ पर क्या है, वाटर जो है वो देखो बेटा एक टाइम पे एसिड और एक टाइम पे बेस है. फर्स्ट वाले केस के अंदर ये बेस है क्योंकि ये क्या कर रहा है, एक हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट कर रहा है, जबकि सेकंड वाले केस में ये क्या कर रहा है, एक हाइड्रोजन आयन डोनेट कर रहा है, तो इट विल एक्ट एज अ व्हाट, एसिड. ठीक है. So water acts as both acid as well as base, and that's why it is amphoteric in nature. Okay. Next आ जाता है, यही सेम चीज आपको बताई. So here यहाँ एक टर्म इंट्रोड्यूस हुई और वो थी कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस. ये मैंने आपको बताया जैसे HA एक सब्सटेंस था जो कि डोनर है, अपना एक हाइड्रोजन आयन डोनेट कर रहा है, ठीक है, इसको, तो ये डोनर हो गया, तो इट इज एक्ट एज अ एसिड. और ये एक हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये बेस है. जो ले रहा है, ध्यान रखना, जो ले रहा है वो है कॉन्जुगेट बेस, और जो अपना क्या किया, जिसने दिया, that will be acting as a conjugate acid. So in the reverse reaction hydroxonium ion, ठीक है, act as a proton donor. ओके, ये क्या हो गया हमारा यहाँ पे, प्रोटॉन डोनर. सिमिलरली इस वाली में रिएक्शन में भी सेम चीज वही समझाई हुई है. सो ब्राउनस्टेड-लॉरी, जैसे कि हम अमोनिया की बात करते हैं, तो अमोनिया जो है that will act as a base. Why? Because it accepts one hydrogen from water, एक लेता है और अमोनियम आयन बनाता है, तो अमोनियम आयन कॉन्जुगेट एसिड है, जबकि उसका अमोनिया जो है वो क्या है, बेस है. यहाँ पर वाटर जो है वो क्योंकि एक H पॉजिटिव दे रहा है अमोनिया को, ऐसे ये डोनेट कर रहा है, तो ये एज ए एसिड यहाँ दे रहा है, और इसका जो कॉन्जुगेट आएगा वो क्या बनेगा, दैट विल एक्ट एज अ कॉन्जुगेट बेस. So substances such as water, ions such as hydrogen sulfate ion है, जो कि दोनों तरीके से यूज होते हैं, they are known as Bronsted-Lowry acids and bases, and these are also known as ampholytes and amphiprotic in their behavior. ओके. ना यही मैंने आपको बात करी अभी कि कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या होता है. तो कॉन्जुगेट एसिड गिव्स कॉन्जुगेट बेस प्लस H पॉजिटिव. ये प्लीज यहाँ से देखिए, HCl एसिड है, उसका कॉन्जुगेट बेस जो है वो Cl नेगेटिव है. यहाँ वाटर बेस है, उसका कॉन्जुगेट एसिड हाइड्रोनियम आयन है. वाटर यहाँ पर एसिड है, उसका कॉन्जुगेट बेस OH नेगेटिव है. अमोनिया हेयर इट एक्टिंग एज अ बेस, और उसका कॉन्जुगेट एसिड NH4 positive है. Similarly, in the another one reaction also the same thing is there. So बेटा इसकी एडवांटेजेस ब्राउनस्टेड-लाउरी कॉन्सेप्ट की यही थी कि ये जो था
इट इज नॉट लिमिटेड टू द मॉलिक्यूल्स। इसने जैसा कि आर्नियस ने किया था कि वो मॉलिक्यूल्स को नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा था जिनके पास H हाइड्रोजन या OH नेगेटिव नहीं था, लेकिन इसने वो चीजें करी थी। इवन it includes the ionic species also such to act as acids or bases। इसको aqueous medium की जरूरत नहीं थी, और it can also explain the basic nature of ions or molecules। ठीक है, बट limitations इसकी थी कि ये भी acidic और basic nature of compounds का नहीं बता पा रहा था, which do not have tendency to lose or gain H positive और OH negative। जैसे कि अब CO2 है, अमोनिया है, SO2, SO3 एक्सेट्रा, तो जिनके पास H पॉजिटिव लूज करने की टेंडेंसी ही नहीं है, उनका नेचर या वो एसिडिक इन नेचर है या बेसिक इन नेचर है, वो चीज नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा था। सेकेंड वन, it could not explain the basic nature of compound also, like NaOH जिनके पास OH नेगेटिव था, CaOH, O2, KOH etc। ठीक है बच्चे, so today we discussed about the Bronsted-Lowry or Arrhenius concept of acids and bases। I give, तो बेटा इस वाले पे उसमें आपको ये एक्सरसाइज करनी है, नेक्स्ट हम बाद में करेंगे। थैंक यू।